Friends and people of Arunachal Pradesh, the All Nishi Institution Anya in its press conference on 10th December 2021 had alleged Sri Pema Khandu, Honorable Chief Minister of the State, regarding the illegalities and mismanagement of public funds, and on the said press conference of Anya had demanded for clarification from government on this issue. However, on 25th December 2021, the ultimatum of 15 days to the government for clarification has expired, and surprisingly the government has not reacted its clarification to the public yet. Keeping in view all the charges made earlier today, Team Anya is convening a press conference to brief on the same matter. Today, we are releasing a booklet for circulation to the public of Arunachal Pradesh. This booklet is not authored by Team Anya. Rather, it was prepared by the BJP unit of Arunachal Pradesh, where it had highlighted all the hydro power scams that took place during Congress regime under the late former Chief Minister Dorji Khandu. Today, we have BJP ruling power in the state, and it is shocking to learn that it has become a silence in this very issue under the Pema Khandu-led government. During Anya's previous press conference, Anya had also highlighted about SGRY scam of rupees 68 crores. It is for public to understand the gravity of the issue and demand for early delivery of justice in the Honorable Supreme Court of India. A video clip will shortly release which will clear every doubt on the issue. The corruption cut across caste, creed, color, community and political party. This is a social evil which is equally harmful to all the communities, not only Nishi. Therefore, all the community must accept that corruption, all its forms, should be equally fought to end this common evil. Corruption is a social evil which hampers overall development of the state. Today, if we don't end the corruption, tomorrow corruption will end us. If corruption is in the top of the state, in that process, we the Nishi community are also affected equally. So there is no point to call as non-Nishi issue. The Chief Minister must play as a father in the family. Therefore, it should treat all its children equally. But present government, under the late Pema Khandu government, that it's not happening that way. Every community in the state deserves equal distribution of funds for overall development of the state. And another thing is why this present government under the leadership of Honorable Chief Minister Pema Khandu is treating us as a stepmotherly. ये देखिए हमारा तानी बेल्ट और कुरुंकुमे करादादी ईस्ट कमिंग पके किसन और ये लॉर्ड्सबर्ग श्री पापुम पारे कमले, ये सब हम लोग का अरुणाचल का हिस्सा नहीं है क्या? ये मैं सरकार को डायरेक्ट सवाल पूछता है। ये हम लोग का ये जितना भी निशी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, ये अरुणाचल का हिस्सा नहीं है क्या? क्यों सिर्फ हम लोग का सिर्फ तवांग बम जिला में इतना डिपार्टमेंट क्रिएट करके कार्तिक अकादमिक डिपार्टमेंट क्रिएट किया, उसका बाद वेस्ट कामिंग और तवांग डिपार्टमेंट क्रिएट किया, और ऐसे क्रिएट करके जितना भी पैसा है उस तरफ ही जा रहा है। तो हमारा यहाँ का जितना कॉन्ट्रैक्टर्स लोग जो काम करके रखा है 2016-17 से अभी तक पेमेंट नहीं मिलता है, लेकिन वहां पे रोज ये पेमेंट मिल रहा है। उसमें जितना भी कॉन्ट्रैक्टर्स लोग का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता है। तो इस तरह का हम लोग को ये ट्रीट करने से और ठीक नहीं है। वो हम लोग पहले से हम सदियों से बोल के आया है और बोलते ही रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है सबको इक्वल मान के चलना चाहिए। कभी भी वो फेवरिज्म में नहीं जाना चाहिए, एरियरिज्म में नहीं करना चाहिए।
वो हम लोग पहले से हम लोग बोल के आया है और बोलते ही रहेगा। और अब ऐसे नहीं करने से ठीक है बोल के हम लोग वही सोचता है। तो अभी जितना भी रेस्ट ऑफ द टीम को हम हमारा प्रेसिडेंट साहब को हम डिलीवर करने के लिए हम बात दे रहे हैं। तो हम लोग ने ये इसमें 9 जुलाई में हम लोग ने ये क्या होता है 10th में इसमें हम लोग ने 15 डेज अल्टीमेटम हम लोग ने दिया था। तो गवर्नमेंट का तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। तो हम लोग ने बस क्लैरिफिकेशन ही हम लोग ने मांगा था, लेकिन आज तक कोई क्लैरिफिकेशन तो नहीं आया। एंड सेकंड पॉइंट जो ये है, कल आफ्टर कंप्लीट द 15 डेज अल्टीमेटम, तो उसका बाद में हम लोग कल 11 बजे को लेटर मिला है कि कल का 2:30 में हम लोग को मीटिंग के लिए हम लोग को ऑनरेबल होम मिनिस्टर का स्पोक पर्सन से हम लोग बात करो, कल हम लोग को लेटर मिला है। तो हम उन लोग से भी हम पूछता है, हम लोग इतना दिन हम लोग अल्टीमेटम आज काफी दिन हो गया, मोर देन 20 डेज ज्यादा हम लोग अल्टीमेटम जो क्रॉस हुआ है, लेकिन हम लोग कल 11 बजे को बोला कि 2:30 को मीटिंग है। आई थिंक ये हम लोग को जस्ट मजाक बना के रखा है। तो इसी के लिए हम लोग का जो अल्टीमेटम जो हम लोग खत्म हो गया, तो इसी के लिए हम लोग ने आज फर्दर आन्या ने हम लोग ये एक्शन ले रहा है कि हम लोग को विद इन द 7 डेज अंदर में आपका हम लोग को आपका रिजर्वेशन हम लोग को चाहिए विद इन द 7 डेज अंदर में। उसका बाद हम अपना डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम लोग एनी टाइम हम लोग लॉन्च करेगा बोल के। यस, थैंक यू वेरी मच। तो आप जैसे बोला आपको वो होम मिनिस्टर का स्पोक्स पर्सन बुलाया था मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो आप लोग गया था मीटिंग में? जी नहीं, अरे हम लोग को 11 बजे को मीटिंग बुलाया और 11 बजे को हमको लेटर मिलता है कि आपका मीटिंग है बोल के। उसका बाद में टाइम को देखा है तो 2 बजे। आप जस्ट इमेजिन करके देखिए, 11 बजे को मीटिंग बुलाता है, लेटर मिलता है, 2 बजे को 2:30 को मीटिंग है बोल के बताता है। उसमें आपको पॉसिबल होगा तो हमको मीटिंग अटेंड करने में? तो इसी के लिए हम लोग ने नहीं गया। और ये है बस हम लोग मीटिंग इसलिए हम गया नहीं है क्योंकि हम लोग का शॉर्ट टाइम का वजह से। एंड सेकंड पॉइंट जो है हमारा ये था कि हम लोग बस क्लैरिफिकेशन मांगा है। हम लोग को मीटिंग जाने का कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आप में सही है तो हम लोग को बस क्लैरिफिकेशन हम लोग को देने से हम लोग भी कोई हमको फर्दर स्टेप हम लोग लेगा भी नहीं और लेना भी नहीं था। तो वही था, हम लोग बस क्लैरिफिकेशन चाहिए था, लेकिन हम लोग को क्लैरिफिकेशन दिया नहीं है। इवन उसका जो हो, अगर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अगर वो सही होता, अगर नहीं उनका गवर्नमेंट स्पोक पर्सन भी तो आके तो हम लोग को जो एलिगेशन जो हम लोग जो डाला है, अब उसी को आप क्लैरिफिकेशन दे सकता था, नहीं दिया। इसी के लिए हम लोग ने फर्दर जो हम लोग जो एक्शन अभी अपना स्टेप जो ले रहा है, आज का डेट से लेके 7 डेज तक हम लोग ने पेमा खांडू रिजिग्नेशन देना है और उसका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का पोस्ट से। उसका बाद हम लोग एनी टाइम हम लोग 7 डेज का बाद हम अपना डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम लोग शुरू करेंगे। आखिरी बार आप लोग की मीटिंग के बाद इतने सारे वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ने आप लोग के अपने ही साथ देने के बावजूद भी अभी विड्रॉ कर दिया गया, इसके ऊपर आपको क्या कहना? देखिए, हम लोग ने किसी को इन्वाइट किया नहीं है, हम लोग ने किसी को इन्वाइट किया नहीं। जैसे हम लोग ने अपना जो जितना इंचार्ज जो हमारा जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और जितना हमारा जो अन्य का जितना जो वेल विशर जो अपना जो यूथ है, तो हम लोग ने मीटिंग इन्वाइट किया था। लेकिन हम लोग ने कभी नहीं बुलाया कि हमको अन्य को हमको सपोर्ट करो, ये करो, वो करो। हम लोग कभी एफएल नहीं किया। वो अपना ऑर्गेनाइजेशन है, वो हम लोग वो अपना जिसको इन्वाइट भी नहीं किया, वो अपना ऑर्गेनाइजेशन से वो अपना सपोर्ट करेगा, उनके खुद आया है तो खुद विड्रॉ किया है वो। उसके लिए मेरे लिए कोई कमिटमेंट उन लोग के लिए नहीं है, वो अपना ऑर्गेनाइजेशन का बात है। हम लोग ने अन्य इतना कमजोर नहीं है कि हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग हायर करेगा। बहुत लोगों का ये भी कहना है कि अन्य इस बार भी निराशा कुछ रिजल्ट देंगे, आई मीन विड्रॉ करने का भी ऐसे सवाल सुनने को आए, इसको कितना? और देखिए, मैं आपको बता दूं तो लास्ट टाइम लोग काफी सारा ने हमारी टीम अन्य को स्पेशली हम लोग काफी सारा ने हम लोग ट्रोल किया है। तो मैं किसी पब्लिक का साथ में सीधा सा बता दूं, हम लोग तो बार तो ऐसा हम लोग इशू जो उठाते हैं, हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हम इशू उठाते हैं। लास्ट टाइम में जो हम लोग ने इशू हम लोग अच्छा खासा हम लोग ने इशू उठाया था, सो उसमें काफी पॉइंट को हम लोग को माना है, सिर्फ एक ही पॉइंट को
वो है कि मैंने आप सोच के देखिए, हम लोग बंद कॉल डेमोक्रेटिक मूवमेंट क्यों करता है? क्योंकि हमारा जो अचीवमेंट, जो टारगेट, जो हमारा जो पॉइंट है, जो हमारा डिमांड को जब फुलफिल करेंगे तब ना हम उसको बात करेंगे। और वो भी नहीं मानेंगे, हमारा जो डिमांड को प्लेस नहीं मानेगा तो उसको हम अपना कंटिन्यू करेंगे। जब वो डिमांड को जब फुलफिल कर रहा है तो उसको हम लोग क्यों उसको कंटिन्यू अपना डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम करेंगे? तो इसी के लिए तो लास्ट टाइम जो हुआ तो डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेन्योरशिप का हम लोग एक इशू उठाया था रिगार्डिंग जब 50 लाख का जो हम लोग उठाया था। तो उसमें हम लोग जो 50 लाख हम लोग उठाए थे, उसमें हम लोग क्या कर दिया, तो हम लोग ने सारा अपना जो लोग वेल विशर लोग कहा कि आपका इशू सक्सेस हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्या कर दिया एंड दैट 50 लाख वर्क ऑर्डर को अभी तक सेंक्शन करेगा उनके किया नहीं है। एंड सेकंड पॉइंट जो है कि जो पहले जो डिस्ट्रिक्ट में हम जो पाम जो 10 करोड़ से हम टेंडर हम पार्टिसिपेट करता था दूसरा डिस्ट्रिक्ट में एंड अनदर हमारा डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी कर सकता है, लेकिन आज का डेट लोग क्या करते हैं, उसको 20 करोड़ बना दिया। दैट इज द उसमें वो हम लोग को इनडायरेक्टली जो उसमें कलर को दिखाई मिलता है कि हमारा निशी को कितना टारगेट है।